Hello students, a warm welcome you all. Students, today we learn about the concept, types and principle of accounting, right? First, what is the meaning of accounting? What do you mean by accounting? Student, we all know that accounting is the complex concept that means the reflection of the result of transaction according to the principle, standard and statutory requirements in the financial statement and other business reports, right? So what is accounting? Accounting refers to the process of recording in the form of journal entries, right? Classifying in the form of ledger, right? Summarizing in the form of trial balance, and analyzing the information gathered or collected in the monetary terms in the form of various financial statements. Financial financial statement, right? Your balance sheet, income statement, right? Cash flow statement for different financial statement, and thereof interpreting the result to the users who are interested in such information. And who are the users? We all know that there are internal or external users. Their user may be the individual, maybe the businesses, maybe the investors, creditors, non-profit organization, tax authorities, government regulatory agencies, etc. So I hope you able to understand what is the accounting mean. Accounting is the process of recording in the form of journal entries, classifying in the form of ledgers, summarizing in the form of trial balance, and analyzing the information gathered or collected in monetary terms in the form of financial statements, and thereof interpreting the result to the users who are interested in such information, right? So this is all about your accounting. Next one is your GAAP, that is generally accepted accounting principle. Now what is this GAAP, generally accepted accounting principle? Beta, they are the guidelines or the standard framework for the financial accounting used in the business, right? And beta, they include all the standard conventions, rules that accountant follow in recording and summarizing and preparation of the financial report. So we can say that GAAP refers to the rules and guidelines adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of the financial statements, right? Now these GAAP are further classified as national GAAP and your international GAAP. National GAAP and international GAAP. National GAAP are known as accounting standards, right? And international GAAP are known as international accounting standards. And this is the, what is this IFRS? IFRS is the new version of this international accounting standards, and your international accounting standards which are prepared in line of this IFRS are known as your Indian accounting standards. And beta, these Indian accounting standards are notified under section 133. Remember this, of Companies Act 2013, right? Of Companies Act 2013, and these standards are prepared in line of IFRS. Why it is IFRS? IFRS is Indian Financial Reporting System. Indian Financial Reporting System. Got it? Which is based, this Indian Financial Reporting System is framed with the aim
of uniform accounting standards, or we can say that a London based board known as the International Accounting Standard Board IABS, which issue IFRS, right? So that there is uniformity in the accounting standard, that is this is the need why the IFRS are formulated, right? This is all about GAAP. Next is your, what are the different branches of accounting. Now types of your accounting are your financial accounting, your cost accounting, and your management accounting. Financial accounting are basically related to the preparation of journal, your books, subsidiary book, your ledger, your trial balance, and the various form of financial statement. This is all about your financial accounting, right? And next is your cost accounting. Now what is cost accounting? Beta, cost accounting is related to identify the per unit cost of product. Per unit cost of product, in which in this you identify the per unit cost of product, in which in this you set the standard for various products and you measure the cost, actual cost of that product. If there is any deviations, you try to rectify those deviation. Now what is management accounting? Management accounting is generally utilize the principles and the practices of financial accounting and the cost accounting, and presenting the accounting information in such a way that is it helps in taking the managerial decision making. I hope you are able to understand what is the financial accounting. But a simple difference, the major purpose of financial accounting is to prepare, to show the financial position of the business, to show the financial position of the business, financial position, right? And the main objective of cost accounting is to calculate per unit cost of product, per unit cost of product. And the management accounting is related to the decision making. समझ में आया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या है, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने हमारे एसेट्स हैं, कितने हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये सब कुछ, ठीक है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. कॉस्ट अकाउंटिंग का बेटा मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू कैलकुलेट द ईच यूनिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. हर एक जो भी प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, so that you can take the decision accurately. कॉस्ट आइडेंटिफाई करना होता है, कॉस्ट रिकॉर्डिंग करना होता है, कॉस्ट को सेट करना, कॉस्ट से रिलेटेड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है. नेक्स्ट आता है बेटा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ जो भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस which are used in this financial or cost accounting, or in addition to other modern management techniques, you furnish such a information in such a way that it helps in managerial decision making. आप ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस ये सब कुछ करते हो ताकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने दी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से, इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे फर्निश करना that it helps in managerial decision making, right? So this is all about the different types of accounting. Beta, next one is your, next we have the various accounting principles. Now what are the various accounting principles, right? Accounting principles पढ़ेंगे बेटा. अब ये accounting principles क्या है? These are the fundamental accounting assumption, concept or the principle which are presumed to have been followed in preparing of the financial accounting. ये principle assumption क्या है? जो हम ये मान के चलते हैं कि that should be followed, ये follow होने चाहिए while preparing the annual accounts. हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, इन्हीं assumption के अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाते हैं, ठीक है. अब बेटा वन बाय वन हम समझते हैं. ये सब गैप प्रिंसिपल है, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, ये सब सारे प्रिंसिपल्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है बेटा बिजनेस एंटिटी
कंसेप्ट। बेटा सिंपल देखिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? दिस कंसेप्ट assume that owner and the business are two different entity, two different separate legal entity हैं। just are two different entities. It means for the purpose of accounting, business and its owner are to be treated separately. ठीक है बेटा, समझ में आया आपको हमने क्या कहा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में? कि जो द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर, मैनेजर एंड अदर्स। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ठीक है, बिजनेस को हम सेपरेट एक एंटिटी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, अपने ओनर से, अपने क्रेडिटर से, अपने मैनेजर से और एनी अदर थिंग। इट इज़ डिफरेंट और ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, डिस्टिंक्ट हम इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अब रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। ठीक, तो देखिए रमेश अलग है और जो बिजनेस है दैट इज डिफरेंट। तो जो रमेश कैश लेके आएगा बिजनेस में, उसको हम क्या बना सेपरेट उसकी एंट्री अगर हम करते हैं तो कैश टू कैपिटल करते हैं। कैपिटल, कैश हमारे बिजनेस में आया, इंक्रीज हुआ, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुई। कैपिटल मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई आपकी। ठीक है, अब बिजनेस को क्या करना है? जो 5 लाख रुपए रमेश कैश लेके आया था, बिजनेसमैन को वही कैश उसको लाइबिलिटी बन जाएगी, उसकी कैपिटल बन जाएगी। वो बिजनेस को, रमेश को विथ इंटरेस्ट वो कैपिटल उसको रिटर्न करनी है। समझ में आया? सिमिलरली अगर इफ द प्रोप्राइटर और द बिजनेसमैन विदड्रॉ सम अमाउंट, वी ट्रीट इट एज ए ड्राइंग। हम उसको ड्राइंग ट्रीट करते हैं। ठीक है, ड्राइंग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बस सिंपल ये है कि हम बिजनेस को और बिजनेसमैन को डिफरेंट एंटिटी ट्रीट करते हैं एंड वी मेंटेन द अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं, याद रखिएगा। वी प्रिपेयर द अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है बेटा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिंपल है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको सिर्फ आप मनी में आइडेंटिफाई कर सकते हो, वही ट्रांजेक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, से देखिए, स्टे ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड हैपनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, सच एज सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और द रिसिप्ट ऑफ इनकम एक्सेट्रा आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जो मॉनिटर परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, मनी आ गया ना 5,000, सेल गुड्स फॉर ₹10,000, मनी आ गया है, तो दैट इज ओनली रिकॉर्डेड इन बिजनेस। ठीक, परचेज मशीनरी फॉर ₹5 लाख, मनी टर्म्स है। बट अगर मैं कहूँ द मैनेजर इज अपॉइंटेड, नहीं, ये ट्रांजेक्शन मनी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? हम क्या सोचते हैं? वी एज्यूम दैट business will continue to exist for a long period in the future। indefinite period के लिए हम business को मान के चलते हैं कि जो हमने business start किया है that is carry for the long period of time। got it? indefinite period of time, fairly long period of time। ठीक, and would not be liquidated in foreseeable future। liquidated, ठीक, liquidated in which not be liquidated in foreseeable future। not liquidated मतलब हम वाइंडिंग अप, क्लोजर नहीं होगा बिजनेस का नियर फ्यूचर। ये मान के चलते हैं कि वी कैरी दैट बिजनेस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी कंसेप्ट के उससे बेटा हम क्या बोलते हैं? वी ऑन दिस, इट इज ऑन दिस assumption we record the fixed assets
जो भी हम फिक्स एसेट्स होंगे उनको रिकॉर्ड करते हैं बेटा उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे, चाहे उनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, हिस्टोरिकल वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस में ये, ठीक है। वी रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, और वी परचेज द फिक्स एसेट्स फॉर 10 ईयर 20 ईयर्स, ठीक है, ये सब के लिए, बिकॉज ऑफ वी एज्यूम दैट द बिजनेस इज फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. So this is all about your going concern concept. Next is your accounting period concept, right? बेटा we accounting period concept क्या है? We assume that this accounting is prepared for a definite period of time so that it performance is measured at the regular interval, ठीक है. इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, अगले साल कितना प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, आप कंपेयर कर सकते हो कि वेयर आर द लॉसेस, यू ट्राई टू रेक्टिफाई दोज एरर्स और activities which create losses in the business. So accounting is prepared for a definite period of time. हम मानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है. फर्स्ट एक फाइनेंशियल ईयर लेते हम विथ accounting is maintained or prepared for that financial year, that is 1 April to 31st March, ठीक है. देखिए accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statement of the enterprise are prepared to know whether it has earned the profit or incurred losses during that period and what exactly the position of the assets and liabilities at the end of the period. देखिए बेटा मैनेजमेंट को क्या चाहिए, दे मेजर द परफॉर्मेंस, फंड रिक्वायरमेंट्स. बैंक और इन्वेस्टर को क्या चाहिए, दे हैव इन्वेस्टेड दी मनी तो दे इंश्योर इट सेफ्टी एंड रिटर्न, उनको चाहिए भैया उनका जो सेफ रिटर्न और दैट शुड बी सेफ. गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स, एक्सेस टैक्स फ्रॉम द एंटरप्राइज. तो फॉर दिस वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है बेटा आपका कॉस्ट कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट require that all the assets recorded in the book of accounts at their purchase price, which include the cost of acquisition, transportation, installation and making the assets ready to use. हम जो भी assets बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक ऑफ अकाउंट्स दैट इज रिकॉर्डेड एट द परचेस प्राइस. सपोज करिए बेटा एक मशीनरी है, द मशीनरी विच इज कॉस्टिंग रुपीज सपोज 1 लाख, ठीक. नाउ ट्रांसपोर्टेशन उसकी सपोज करिए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई उसकी आपकी 10,000, ठीक है, 10,000. एंड सपोज करिए उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए आपके, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए आपके 5,000, ठीक है, ठीक. नाउ द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट क्या होगी बेटा मशीनरी की, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी 1 lakh plus 10,000 plus 5,000, right, 5,000. तो 1,15,000 इसकी हो गई कॉस्ट. समझ में आया? रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेस प्राइस विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में आपने ली है, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट्स रेडी फॉर यूज, ठीक है. अगर आपके कुछ रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस और उसमें लग रहे हैं तो दिस इज योर कॉस्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट आता है बेटा ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट. अब ये ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको थोड़ा सा देखिएगा. ड्वेल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, राइट. बेटा इसमें क्या है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हैव अ ड्वेल एस्पेक्ट, टू फोल्ड एस्पेक्ट, ठीक है. डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा. समझ में आया? If one account is debited, then other account is also credited, or we can say that assets is equals to liabilities plus capital. Dual aspects. समझ में आया? The system recording transaction based on this principle is known as double entry system. इसी को हम double entry system बोलते हैं, where debit is equals to credit. ठीक है. And only because of this principle बेटा the two sides of balance sheet are equal. इसी principle के basis में जो हम balance sheet बनाओगे आप, एक जगह आप liabilities लिखते हो, दूसरी जगह आप assets लिखते हो,
और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी यहाँ पर आपकी सारी कैपिटल और लायबिलिटी दोनों आती हैं, तो दोनों साइड आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। This concept state that every transaction has dual or two-fold effect that should be therefore be recorded in the two places. ठीक है, next is your रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड, देखिए पहले हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेंगे, is required that revenue of the business transaction should be included in the accounting record only when it is realized। अब थोड़ा सा और देखिएगा इसको बेटा, इसका मतलब हुआ the revenue is considered to have been realized only when the transaction have been entered, and the obligation to receive the amount is established। transaction is entered and transaction हो चुका है, and the obligation to receive the amount is established। ठीक है, और बेटा हम कह सकते हैं when the title or the ownership of goods have been transferred to the purchaser, जब आपने जो टाइटल है गुड्स का वो आपने ट्रांसफर्ड कर दिया है, जब ओनरशिप जो है ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द परचेजर, तब हम मानेंगे कि द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, और वी कैन से दैट when he has legally become liable to pay the amount। ठीक, legally become liable to pay the amount। समझ में आया आपको क्या बोला? देखिए दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्या याद रखना है? रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड when the transaction have been entered, जब ट्रांजेक्शन हो चुका है, and the obligation to receive the amount is established। now it becomes the obligations that the amount is to be established। अब आपको देना पड़ेगा, that become your responsibility to pay the amount। next, और we can say that the title or the ownership of the goods, जो टाइटल है, जो ओनरशिप है गुड्स का, वो ट्रांसफर हो गया है परचेजर को। the title or the ownership of the goods have been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount। this is your revenue recognition concept। अगर इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है सिंपल, एन एंटरप्राइज सेल गुड्स इन Feb 2018। ठीक है, Feb 2018 में हमने गुड्स को सेल किया। ठीक है, यहाँ पर हमने गुड्स को सेल कर दिया, वी सेल दी गुड्स, एंड द अमाउंट इन द May 2018 एंड सॉरी वी सेल द गुड्स इन, आपने गुड्स यू सेल द गुड्स इन 2018 एंड रिसीव द अमाउंट, और आपने सेल किया एंड रिसीव द अमाउंट इन Feb इन May, जस्ट वेट बेटा, देखिए दोबारा करते हैं प्लीज। आपने सेल किया गुड्स को, यू सेल द गुड्स इन Feb 2018, Feb में आपने सेल किया। ठीक, एंड रिसीव द अमाउंट इन, रिसीव किया आपने मई में। ठीक है, 2018 के मई में आपने अमाउंट रिसीव किया। ठीक है बेटा, इन दिस अब क्या है, रेवेन्यू
of this sales should be recognized in the Feb 2018, that is when the goods are sold, सेल बेसिस में। अब ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कब मानूंगी मैं? फैब में मैंने गुड्स सेल कर दिया है, ठीक है। फैब में मैं कहूँगी कि हाँ गुड्स मैंने सेल कर दिया, तो मेरी एंट्री होती है सीधे, क्योंकि जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो कुछ ऑब्वियसली कोई नाम होगा, ये कोई डेटर्स होगा। सपोज गुड सेल्स ऑन क्रेडिट टू रमेश फॉर ₹5,000, तो हम एंट्री करते हैं बेटा रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं मान लेती हूँ कि मेरी सेल्स हो चुकी है। दूसरी इसका एक एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और देखिए। एन एंटरप्राइज है रिसीव्ड इन एडवांस, सपोज करिए अब आपने एडवांस रिसीव्ड कर लिया है, ठीक है। एडवांस आपको रिसीव्ड हुआ है, एडवांस रिसीव्ड इन फेब 2018 में, ठीक, फॉर सेल टू बी मेड, ठीक। अभी आपको एडवांस रिसीव्ड हुआ है इन मई 2018 एंड सॉरी द एंटरप्राइज है रिसीव्ड एन एडवांस इन फेब 2018 फॉर सेल टू बी मेड मई 2018। ये जो एडवांस रिसीव्ड हुआ है बेटा, इसकी जो सेल होनी है वो सेल होनी है आपकी मई 2018 में, मई 2018 में। सब समझ में आया? आपको एडवांस रिसीव्ड हो गया फेब 2018 में, और जिसकी सेल आपने रिकॉग्नाइज, सेल कब की है? सेल करनी है आपने मई 2018 में। अब यहाँ पर क्या होगा? द रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन मई 2018। मेरी सेल कब की है? 2018 की है, ठीक है। तो 2018 में ही मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करूँगी, ठीक। द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन मई 2018, ठीक है, बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन मई 2018। दिस इज योर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत करना। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब हुआ included the concept of revenue recognition require that revenue of the business transaction should be included in the accounting record only when it is realized। जब वो होगी तभी हम उसको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। समझ में आया? दोनों एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। देखो पहले वाले केस में क्या किया था मैंने, पहले वाले केस में मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाया था कि भाई हमारी जो गुड सेल्स हुए हैं, द एंटरप्राइज सेल द गुड इन फेब 2018 में हमने गुड सेल कर दिए हैं, बट उसका हमको अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ, ठीक। तो मैं सेल कब की मानूंगी? फेब 2018 की ही मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका दूसरा, मैंने एग्जांपल ले लिया, आपको एडवांस रिसीव्ड हुआ है फेब 2018 में फॉर सेल टू बी मेड इन मई 2018, जिसकी सेल कब होनी है? मई 2018 में होनी है। तो बेटा जो रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन मई 2018 ओनली, हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब का मानेंगे? मई 2018 को। उस टाइम पे हम उसको एडवांस पे प्रीपेड एडवांस में ले लेंगे अमाउंट को, जितना जो हमको एडवांस में रिसीव्ड हुआ। हमने सेल नहीं है, एडवांस रिसीव करके दिखाते हैं वो अमाउंट, ठीक है। और अभी हमने सेल उसकी नहीं करी है। दैट मीन आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। बेटा आया ना सबको समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मैचिंग कंसेप्ट। अब ये मैचिंग कंसेप्ट क्या है? मैचिंग कंसेप्ट है बेटा सिंपली it is an important objective of the business to determine the profit earned or losses incurred during the particular period involves deduction of related expenses from revenue earned during that period। सिंपल मतलब क्या है बेटा इसका? देखिए जो the match revenue of the period, it is necessary to match the revenue of the period with the expenses of that period for determining the correct profit। जिस साल की मेरी रेवेन्यू है उसी जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसी साल के रेवेन्यू से मैं डिडक्ट करूँगी, सो दैट इट एबल्स टू नो द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर मेरे इस साल के जो भी एक्सपेंसेस हैं, इस साल के जो भी खर्चे हैं, मैं इस साल के रेवेन्यू से ही उनको डिडक्ट करेंगे, ठीक है, सो दैट वी एबल टू नो द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट है बेटा आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। दिस प्रिंसिपल ऑफ full disclosure required that all the material and the relevant facts concerning the financial performance of the enterprise must be fully
and completely disclosed in the financial statement and accompanying the footnotes. फुल डिस्क्लोजर का मतलब है आपके पास जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी दैट शुड बी fully disclosed in the financial statements. Got it? I hope you are able to understand all these concepts. Full disclosure, revenue recognition. नेक्स्ट है बेटा फुल डिस्क्लोजर. आगे सबको समझ में कि आप जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो यू देयर शुड बी द ट्रू इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल पोजीशन. ये कह सकते हैं देयर शुड बी द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन फैक्ट्स. ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस. राइट. नेक्स्ट है बेटा आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी बेटा, कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्म. ठीक है, हम क्या मानते हैं दैट ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मैथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट और द यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर. ठीक है, कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दे शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, डेप्रिशिएशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आप एक साल जो मेथड यूज़ करते हैं उससे भी आगे आने वाले सालों में उसी मेथड को आप यूज़ करेंगे. यू यूज़ दैट मेथड इन फोर्टकमिंग फ्यूचर. अगर सपोज करिए डेप्रिशिएशन का कोई मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं. अगर मैंने इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया तो आने वाले सालों में भी मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को ही यूज़ करूँगी. जिस प्रिंसिपल से, जिस मेथड से जो भी मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ उसी मेथड से, उसी प्रिंसिपल को मैं आगे भी फॉलो करूँगी. कंसिस्टेंसी मतलब देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन ऑल दी मेथड्स, प्रिंसिपल, टेक्निक विच आर यूज्ड इन अकाउंटिंग. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. कंजर्वेटिज्म को थोड़ा देखिएगा, इसमें भी बच्चे भूलते हैं बहुत ज़्यादा. कंजर्वेटिज्म का मतलब हुआ बेटा फ्रॉम प्लेइंग सेफ साइड. ठीक है, आपको डर डर के चलना है. ठीक. अब इसी प्रिंसिपल के बेसिस में हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड ऑल दी लॉसेस. आप जितने भी लॉसेस हैं उन रिकॉर्ड ऑल दी लॉसेस एंड यू इग्नोर ऑल दी प्रॉफिट्स. हम प्रॉफिट फ्यूचर में प्रॉफिट हो ना हो कुछ नहीं पता, हम फ्यूचर के प्रॉफिट हमेशा इग्नोर करेंगे. देखो हो सकता है आपको डेफिनेट है कि प्रॉफिट होगा बट बेटा दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. बट जो आपके लॉसेस अराइज होने वाले हैं फ्यूचर में, जो आपने अभी सोच लिया है कि मुझे फ्यूचर में लॉस हो सकता है मेरे जो डेटर्स हैं मेरे को पैसा ना दें, ये मैं मान के चलती हूँ. ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में इन्हीं लॉसेस को कवर करने के लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन. आगे डेप्रिशिएशन होगा नहीं होगा, कितना होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता, बट हम स्टार्टिंग में उसका प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेटिव अप्रोच. यू आर प्लेइंग सेफ साइड. ठीक है, I hope you are able to understand this conservatism approach. Got it? समझ में आया सबको? बस एक चीज याद रखना बेटा, all the anticipated losses should be recorded in the book of accounts and all the anticipated unrealized gain or the profit should be ignored. ठीक है, that is why we make the provision is made for all the known liabilities or the losses जो होने वाली हैं. You are playing safe side. कंजर्वेटिज्म का वर्ड आता है तो समझ लेना सेफ साइड रहना है हमने. ठीक है, बहुत सोच समझ के चलना है. नेक्स्ट है बेटा आपका मैटेरियलिटी कंसेप्ट. ठीक है, मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलते हैं, वी रिकॉर्ड ऑल द मटीरियल फैक्ट्स विच अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पर्सन. अब बेटा ये मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है, दैट
focus on the material facts and this materiality fact depends on the nature and the amount of involved. एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं आपका सपोज करिए मेरी बैलेंस शीट है, सपोज करिए जो मेरी बैलेंस शीट है इसका जो बैलेंस है आपको सपोज करो बैलेंस शीट दिखा रही है मेरी 5 करोड़ की, ठीक है। अब इसमें एक कोई आइटम था 100 200 का, सपोज करो मैं 100 का ही कोई आइटम ले लूँ, 100 या 200, वेरी लेस अमाउंट। अगर सपोज करिए आप इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, आपने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, इट डज नॉट अफेक्ट योर डिसीजन, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 100 रुपये के कोई आइटम से 5 करोड़ की बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। बट अगर यही बैलेंस शीट 1 करोड़ की होती, अगर यही बैलेंस शीट अगर मेरी 1 करोड़ सॉरी यही बैलेंस शीट सपोज करिए अगर यही बैलेंस शीट मेरी सपोज करिए 1000 की होती, छोटा सा बिजनेस है 1000 की हो जाती है बैलेंस शीट, 1000 के हैं भाई मेरे पास एसेट लायबिलिटी, तो ये 100 जो अमाउंट है दैट अफेक्ट्स माय डिसीजन, ठीक है। तब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी, समझ में आया इसका मतलब। मेटेलिटी कंसेप्ट का मतलब हुआ यू रिकॉर्ड ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विच अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ ए पर्सन, ठीक है। आप जो भी आइटम है आप उसको अफेक्ट करता है अगर आपके डिसीजन को, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया आइटम, नहीं, यू रिकॉर्ड ऑल द मटेरियल फैक्ट दैट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द इन्वेस्टर। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा दिया, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है? इट रिक्वायर द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर दैट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस, ठीक है। आप कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे अकाउंट्स में, एंड दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच एंड every transaction supported by the verifiable document and the vouchers। अब बेटा ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? मुझे प्रूफ चाहिए। मैंने बोला कि भाई हमारी सेल इतनी हुई है, हमारी परचेज इतनी की है, तो व्हाट इज द प्रूफ? देयर शुड बी दैट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विद सम एविडेंस, सम प्रूफ, वाउचर होना चाहिए, उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द accounting transactions that are recorded in the book of accounts should be evidence and supported by the business documents, जैसे मेमोज हैं, इनवॉइस हैं, वाउचर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जो भी आप एग्रीमेंट्स हैं वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और वी कैन से दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस आइदर फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड और फ्रॉम द अकाउंटेंट साइड, बिकॉज ये जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं बन रहे हैं, बिकॉज एक्सटर्नल पार्टीज जो भी आपकी हैं दे आर ऑल्सो, दिस इज ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दोज पार्टीज ओनली। जितने भी आपकी एक्सटर्नल पार्टीज हैं, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट वेयर इज दिस कंसेप्ट, ये है ना, जो भी, क्यों हम ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों? एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितनी भी आपकी गवर्नमेंट हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, ये भी तो, ये इनके लिए भी तो जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आप, दिस इज ओनली द मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड दीज इन्वेस्टर्स, ठीक है। दैट इज वाई ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, ठीक है, आइदर फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड और द अकाउंटेंट साइड। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट I hope all the principles are completed. I have also given the link of the PDF of the concept and principles of accounting in the description box. Please go through it. So this is all about your principle and concept of accounting. I hope you are able to understand it. If you have any queries, please write in the comment box. And student, if you need more videos related to this accounting,
So please do share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon button so that you may get the notification for upcoming videos. Thank you, student. Thank you so much. Stay safe, stay healthy. Thank you once again. Thank you, students.